we are going to start next chapter, that is molecular basis of inheritance. Inheritance is transfer of genetic material from one generation to the next generation, that we already studied in the first chapter of 12th science. And in that chapter we also studied that Mendel carried out different experiments to study the inheritance. And Mendel said that as the characters are transferred from one generation to next generation, there are some factors which are responsible for transmission of this character from one generation to next generation. लेकिन मेंडल को ये नहीं पता था कि ये फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या है. मेंडल वाज अनेबल टू प्रूव द फिजिकल बेसिस या बायोकेमिकल बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स. मतलब ये फैक्टर एग्जैक्टली डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके बारे में मेंडल को कुछ नहीं पता था. तो कौन सा मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये इस चैप्टर में हमको समझ में आएगा, विच मेंडल कुड नॉट से. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. एंड टुडे वी नो, एवरी वन ऑफ अस नोज दैट द मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इट इज डीएनए, deoxyribose acid. But how we prove that DNA is the genetic material, that we have to see first in this chapter. So we will begin the chapter with the help of the experiments to prove that DNA is the genetic material. These experiments were already carried out by the scientists. We don't have to carry them freshly. So we will study the first experiment which was carried by Griffith to study the molecular nature of the factor responsible for inheritance. तो ग्रिफिथ ने क्या किया, उसने दो ऑर्गेनिजम्स को साथ लेके एक्सपेरिमेंट किया. वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज द बैक्टीरिया, and the bacteria which was selected by Griffith for his experiments was Streptococcus pneumoniae. Because this bacteria causes pneumonia in mammals including humans, its name is pneumonia. And because the morphological feature of this bacteria is that it is a coccus, spherical bacteria, and lots of bacteria, they form a string-like structure by joining with each other. That is why the name Streptococcus. And this is the genus name, this is the species name of the bacteria, and the genus and the species name completely describe the morphological and the disease-causing nature of the bacteria. So this bacteria causes pneumonia in all mammals, in humans also, and it also causes pneumonia in mice, because mice is also one of the mammal. So the second organism that was selected by Griffith for his experiment was mice. तो ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली क्या किया उसके एक्सपेरिमेंट में, ही इंजेक्टेड these bacteria into the body of the mice, but the bacteria possesses two different types of strains. Okay, so strains of bacteria. Streptococcus pneumoniae के जो दो strains है उसमें से एक strain है S strain, S का मतलब होता है smooth strain, and जो दूसरा strain है that is rough strain. Now again this is based on the morphology of the bacteria. The smooth bacteria possesses capsule. Suppose this is the bacteria, and the bacteria possesses a polysaccharide capsule over it, and that is why the bacteria appears smooth in nature. But the rough bacteria, they don't possess any capsule surrounding them, and that is why they appear rough under the microscope. Now rough bacteria are unable to cause pneumonia in mammals, but smooth strains which are responsible for pneumonia, they are, that is why called as virulent. Because they cause pneumonia,
they are called virulent, and because they are unable to cause any disease in mammals, they are called as non-virulent. Now, what is the reason that this bacteria is not able to cause the disease and this bacteria is able to cause the disease? The reason is that the mammalian body possesses immune system which fights against the infectious agents like viruses. For example, we are now undergoing corona outbreak, and corona is causing several deaths and infections in human beings, but our body fights against this coronavirus also, and जिसका immune system strong है वो वायरस को बॉडी के अंदर किल करता है, वायरस उसको कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको वायरस किल कर सकता है, उसका बॉडी वायरस को नहीं किल कर पाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो रफ स्ट्रेन है, ये अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है बैक्टीरिया का, तो हमारी बॉडी इसको किल कर देती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल कर देता है, बिकॉज ये उतना पावरफुल बैक्टीरिया नहीं है। बट दिस बैक्टीरिया इज मोर पावरफुल, ये खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो स्मूथ दिखता है। तो इसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के एंटीजेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाता है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती है, एंड दैट इज व्हाई द बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है, लंग में जाने के बाद फिर ये लंग में इन्फेक्शन करके न्यूमोनिया कॉज करता है। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल रीजन that this smooth strain is responsible for causing pneumonia and the rough strain is not responsible for causing pneumonia. तो इसका मॉलिक्यूलर बेसिस एग्जैक्टली क्या है? ये बैक्टीरिया भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ये भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, तो ये क्यों कैप्सूल बना रहा है और इसके पास क्यों कैप्सूल नहीं बन रहा है, ये भी हम देखेंगे बाद में। तो अभी हमको देखना है कि एग्जैक्टली ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ग्रिफिथ फर्स्ट इंजेक्टेड स्मूथ strain of Streptococcus pneumoniae into mice। मतलब एक लिक्विड सस्पेंशन बनाया बैक्टीरिया का, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का, और उसको इंजेक्शन में लेके माइस को इंजेक्शन दे दिया, और माइस को इंजेक्शन देने के बाद कुछ दिनों के बाद ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया कि उस माइस के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। तो पता चला ग्रिफिथ को कि mice dies due to pneumonia, और फिर ये जो मरा हुआ माइस है जिसको न्यूमोनिया हुआ था इस एस स्ट्रेन की वजह से, इस मरे हुए माइस की बॉडी से उसने ब्लड आइसोलेट किया और ब्लड में चेक किया कि अगेन वेदर द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन इट। तो उसको पता चला कि इस माइस के ब्लड के अंदर लाइव एस स्ट्रेन प्रेजेंट है, मतलब द लाइव एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दे ग्रीव इन द बॉडी ऑफ द माइस, दे कॉज न्यूमोनिया एंड दे किल्ड द माइस। इन द सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स what Griffith did, he injected rough strain into the body of the mice, and rough strain को इंजेक्ट करने के बाद again he observed the mice for several days, and उसको पता चला कि the mice are in living condition, they are alive, there is no pneumonia, and when he tried to isolate the blood and checked the blood for the presence of the bacteria, he did not find any bacteria. No bacteria were present in the blood of the mice, in the blood. तो यहाँ पे भी लिखेंगे लाइव एस स्ट्रेन इन ब्लड। तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब जो बैक्टीरिया माइस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए वो बैक्टीरिया मर गए माइस के बॉडी के अंदर ड्यू टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द माइस, एंड इसलिए माइस को कुछ नहीं हुआ, द माइस वेयर लाइव। ओके, अब उसने क्या किया थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया को हिट किया, जैसे अभी हम सीख रहे हैं कोरोना वायरस के केस में आगे कि बॉईल करो वाटर को, तो उसमें अगर कोरोना वायरस है भी तो मर जाएगा, या सब्जी को बॉईल करो, बॉईल करके खाओ तो सब्जी के ऊपर कोरोना वायरस होगा तो मर जाएगा। उसी तरीके से ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी
क्या किया, उसको बॉईल किया, मतलब हीट किल किया, उसको टर्म यूज किया जाता है हीट किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया. सो व्हाट ही डिड इन द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ही इंजेक्टेड heat killed S strain into mice. और जो मरा हुआ बैक्टीरिया है वो ऑब्वियसली डिजीज नहीं कॉज कर सकता, ये मतलब जनरल चीज है, हम सब लोगों को पता है. एंड देन ही ऑब्जर्व्ड अगेन द माइस एंड ही फाउंड दैट द माइस आर लाइव, मतलब देयर इज नो न्यूमोनिया टू द माइस. And when he tried to observe the blood of the mice, again there were no bacteria in the blood of the living mice. Okay, ये यहाँ तक 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए. He also carried out 4th set of experiment. अब 4th set of experiment में उसने क्या किया, जो सेट बी है एंड जो सेट सी है उनको कंबाइन किया, मतलब ही मिक्स्ड एंड इंजेक्टेड लाइव रफ स्ट्रीम प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रीम, मतलब स्मूथ स्ट्रीम. B से लाइव रफ स्ट्रेन एंड C से हिट किल्ड S स्ट्रेन, दोनों को मिक्स किया. अब B में भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, C में भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब हीट किल्ड S स्ट्रेन से भी कोई इन्फेक्शन माइस को नहीं होता है. एंड इंजेक्ट लाइव रफ स्ट्रेन इंजेक्ट करने से भी माइस को कोई इन्फेक्शन नहीं होता. तो दोनों को मिक्स करके अगर हम माइस को इंजेक्शन दे देंगे तो भी इन जनरल क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नो infection to the mice, but surprising to the world and surprising to the experimenter Griffith, the results were not in that way. The mixture of live R strain and heat killed S strain caused pneumonia to the mice, and that is why the mice died due to pneumonia. And when Griffith isolated the blood of the dead mice and observed the presence of bacteria, तो ग्रिफिथ को पता चला कि इसके अंदर लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है. अब ये थोड़ा चमत्कार वगैरह जैसी बात हो गई कि हमने इंजेक्ट करते समय किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया था और माइस के बॉडी में अब लाइव एस्ट्रेन है. बट इसका एक भी साइंटिफिक बेसिस ये है कि जब हमने दोनों को एक साथ मिक्स किया तो ये जो किल्ड एस्ट्रेन है, अगर कोई भी सेल किल हो जाता है तो उसका ऑस्मोटिक बैलेंस लूज हो जाता है, मतलब सेल रप्चर होता है एंड उसके बाहर उसका सारा मटेरियल आता है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए सारे बाहर आते हैं. और ऐसा ही इस केस में भी हो गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के केस में उसका सारा जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया एंड सम पार्ट ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल वाज एक्वायर्ड, अपटेकन बाय लाइव आर स्ट्रेन. तो लाइव आर स्ट्रेन अब किस में कन्वर्ट हो गए, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए. मतलब ये कैप्सूल बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है एस स्ट्रेन के पास, वो मॉलिक्यूल मरे हुए एस सेल से बाहर आ गया और वो मॉलिक्यूल आर सेल ने अपटेक किया, इसलिए नाउ आर सेल के सराउंडिंग में भी क्या बन रहा है, कैप्सूल बन रहा है. एंड द आर सेल इज नो मोर आर नाउ, इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू द एस स्ट्रेन. ओके, और अगर ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया तो माइस इसको किल नहीं कर पाएगा, उल्टा ये एस स्ट्रेन माइस को किल करेगा न्यूमोनिया कॉज करके. एंड दैट इज व्हाई द mice will be killed and in the blood of the mice we will find live S strain bacteria. मतलब R strain ही S strain में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है कि जैसे हम फिल्म में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टडीड वन ऑफ द फिल्म ऑफ शाहरुख खान विच इज रावण, तो इन द मिडल ऑफ द फिल्म समवेयर द विलन टेक्स द अपीयरेंस ऑफ द हीरो. मतलब जो विवेक ओबेरॉय है वो शाहरुख खान के जैसा दिखाई देता है, मतलब उसमें क्या हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. चेंज इन द फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जैक्टली वैसे ही जो लाइव आर स्ट्रेन है वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है,
लाइव एस स्ट्रेन के जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ।